He was the only person in the office. But then I'm scared. Oh my god, I hope my father doesn't see it. It's online. I lied for good 1.5 years. I lied to my family. मेरे को जम्मू से मैसेज आ रहे हैं, मेरे को गोवा से आ रहे हैं, पुणे से आ रहे हैं. Shreya, we saw your wedding, and I was dying each and every day of my life. And I was like, yeah, पापा को ना चले जाए बस WhatsApp. And my father calls me. ये क्या है मेरे फोन में? WhatsApp मेरे को भेजा है मेरे फ्रेंड ने. What is this? इसको हटा अभी के अभी WhatsApp. My father asked me a simple question in anger. तू गई, अगर तूने गेट के बाहर पैर रखा तो उस घर में वापस मत आइए. All right. I'm so glad finally I get to talk about my life. Finally, I'm here, and let's talk about Shreya Mehta, the filmy kudi. This talk is going to be about this teenage girl who was very underconfident. She was a failure. She used to fail in every exams. Nobody used to talk to her. Nobody used to hang out with her. She used to cry all the time. She used to have suicidal thoughts. I'm not kidding. Yeah. And aggressive teenager who always used to question that why am I alive? Why? मतलब मैं क्यों हूँ? मतलब ये नहीं चाहिए मेरे को जिंदगी. Like I hated every single moment. Like I don't want my teenage life to come back again because it was so horrible. So from that to this, where I'm standing right now, this 24-year-old, confident, and I'm very proud of it, confident, groomed, पॉजिटिव हैप्पी पर्सन. जब स्कूल में थी ना मैं, तो मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट यू नो लाइक पीपल, स्टूडेंट्स होते हैं, बुली वुली करते हैं बहुत ज़्यादा. तो आई वॉज गिवन a lot of names and I was called ugly. It's a very bad word. It should not be used for anybody. And I was this ugly child and who used to fail in every exams. And I'm not kidding, I used to get 29%. Like seriously, like I used to fail in every exam. And bunk करती थी, sports में अच्छी थी, dance वगैरह में interest था, but कोई friends नहीं थे, कुछ नहीं था. So as I said, I always used to question myself. You know, why am I alive? मैं स्कूल ट्रिप्स में नहीं गई, मैं कॉलेज ट्रिप्स में नहीं गई, मैं 6 बजे के बाद मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, मैं अपने कॉलेज फ्रेशर्स में नहीं गई, मैं नाइट स्टेज अपने बेस्ट फ्रेंड्स के घर नहीं गई, मैं किसी दिवाली पार्टी मैंने कुछ नहीं करा. मुझे अलाउ नहीं होता था यार. मतलब 7 o'clock I cannot even leave my house. And I used to cry every night. I'm not kidding. I don't even think about it. I don't even want to think about that life which I lived. Trapped, I used to see all these videos. I used to like, I want to do this, I want to do that. I used to watch films, just Bollywood, just Hindi cinema films, nothing like English नहीं देखती थी मैं इतनी. But मैं सिर्फ Bollywood की films देखती थी and it used to make me so happy. And मैं बस अपने आप को train करती थी. मुझे को पता था कि मेरे को अगर मैं घर पे बोलूँगी मुझे डांस सीखना है, because I discovered this talent that I'm a dancer. मैं बोलूँगी मुझे डांस सीखना है, नहीं, हमारे घर की लड़कियाँ डांस नहीं करती. मतलब जैसे क्या हो जाएगा अगर मैंने कर भी लिया. But yeah, they had that mentality and no support, nothing. And I was so scared of the men of my family. And मैंने सारे अपने ड्रीम्स कारपेट के अंदर रखे, किसी को नहीं बताया. एक्टिंग तो मैं बोल ही नहीं सकती थी अपने घर में. डांसिंग तो चलो होता है ना, हर बच्चा डांस करता है. नो, एक्टिंग तो मैं बोल ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे घर की लड़कियां कैसे एक्टिंग करेंगी. मतलब ये तो वो इतनी बड़ी चीज़ थी. आई स्टार्टेड ग्रूमिंग माई सेल्फ. एंड ऑल्सो Jab We Met came. That movie changed my life, and that movie shaped my life in so many ways I cannot even tell you people. Because I was this aggressive person who never used to talk to anybody, and who never कोई मुझसे बात नहीं करता था, and I had so much of energy in me. And then I saw Geet. I'm not a Kareena fan. It's just like I love that character, because I was like, oh my god, that is me. I am that inside me. I'm a happy person. I'm a loud, crazy, mad chick. Why am I being like this? So I saw something and I was like, that can be, I am that. And I also realized by the end of the film that this is exactly what I want to do. And that's how I discovered my second talent, which was acting. By the time I was 14, I discovered that this is what I want to do. Jab movie Jab We Met khatam hui, I was like, I want to entertain the world. Then I come to college, and
देन देयर इज दिस न्यू वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ मी. मुझे कॉलेज नहीं करना था, मुझे स्कूल के बाद कॉलेज नहीं करना था क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी नहीं थी. मैं बुक्स के लिए बनी ही नहीं थी, मुझे पता था ये बात. माई फादर वॉज लाइक नो ग्रेजुएट हो. आई वॉज लाइक आई वांट टू गो टू NSD, आई वांट टू एक्ट. ही वॉज लाइक नो बेबी, you are not doing anything like that. But मुझे 4 साल मांगे गए मेरे, प्लीज़ ग्रेजुएट. मेरी मॉम शी यूज टू लाइक, वो सपोर्ट करना चाहती थी मुझको पर मैं वो कर नहीं पा रही थी बिकॉज यू नो हाउ इट इज़ फॉर मदर्स in such families, they can't speak what they want to speak. So she used to like, so she used to feel so helpless for me. She used to be like 4 साल दे दे मुझको, कॉलेज कर ले. I have this vision कि after college तेरे साथ कुछ अच्छा होगा, तू कर लेगी. I gave her my 4 years, not even that. उससे पहले भी 4 साल मैं दे चुकी थी, तो 8 साल तो मैंने दिए ही हुए थे ऑलरेडी अपनी फैमिली को. कि एंड मुझे जब मैं कॉलेज में थी मुझे इतने ऑफर्स आते थे मॉडलिंग के लिए बिकॉज आई वाज इन पर्ल अकेडमी ऑफ फैशन. सो मेरे को मॉडलिंग के इतने ऑफर्स आते थे, A-list डिज़ाइनर्स थे. बट मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. मैं सब ऑफर्स डिक्लाइन करती थी. मैंने 100-200 ऑफर्स मैंने डिक्लाइन करे हुए हैं. मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं चलने दिया मैंने कि आई एम गेटिंग ऑल दीज ऑफर्स जस्ट फॉर देयर हैप्पीनेस. आई वाज सैक्रिफाइसिंग एंड आई वाज डाइंग ईच एंड एवरी डे ऑफ माई लाइफ. क्योंकि मेरे को जाने नहीं देते थे कहीं पे 7 बजे के बाद. गुड़गांव नहीं जाने देते थे, मुझे मुंबई क्या जाने देंगे मेरे घर वाले. अब मैं फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज के, मैं लास्ट सीट में बैठ के पढ़ाई तो करती नहीं थी. मैं लास्ट सीट बैठ के ना यूट्यूब देखती थी. यूट्यूब तो उस टाइम में शुरू हुआ था इंडिया में. तो मैं देखा यार ये राउडीज करके वीडियो आ रही है, TVF क्यूटियापा करके कुछ तो है. एंड देन आई वाज लाइक डैम यार ये करना है यार, ये जो भी क्यूटियापा कर रहे हैं. आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस सो मच फन. बट उनका ऑफिस बॉम्बे में था. आई वॉन्ट टू वर्क विद दैम सो बैड. एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूँ. लाखों लोगों की तरह सबको TVF के साथ काम करना था. एंड आई वाज लाइक मुझको भी करना है, मैं क्या करूँ. मेरे को 7 o'clock के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते. मैं यहाँ मुंबई कैसे जाऊँगी मैं. देन डिड आई गिव अप. आई मेड अ प्लान. मैं बॉम्बे नहीं जा सकती पर बॉम्बे तो फेसबुक पे ला सकती हूँ ना. एंड देन आई स्टार्टेड एडिंग एवरीवन जो क्यूटियापा वीडियोस की एंड में आता था. क्रिएटेड बाय अरुणाब कुमार, एक्टेड बाय निधि बिष्ट, जितेंद्र को, इन सबको मैंने जितने भी सीनियर्स हैं सबको जानती भी नहीं ऐड कर लिया. मेरे को लगा इनको ना मैं एंटरटेन करती हूँ अपने, मतलब ये मेरा दिमाग था, मुझे नहीं पता वो एंटरटेन हुए हैं कि नहीं हुए हैं. आई वॉन्टेड देयर अटेंशन सो बैड कि मेरे को लगा इनको ऐड करती हूँ. थैंकफुली दे एडेड मी बैक एंड दे वर द वायरल स्टार्स ऑफ इंडिया, द फर्स्ट बैच ऑफ इंडिया. And they added me back and then I started upload. उस टाइम में डब स्मैशर्स चलते थे तो मेरे पास और कुछ था नहीं करने को. थिएटर वगैरह कुछ नहीं करती थी. तो I started putting dub smashing and my dance videos on Facebook and I started gaining their attention. So I started talking to the founder of TVF and these people. I started talking to them. उनकी आंखें आई मेरे पे कि हाँ ये कोई तो लड़की है श्रेया मेहता करके दिल्ली में, which was a big thing. And then my father was like मेरा 4th ईयर भी आ गया कॉलेज का. मुझसे 4 साल मांगे गए तो मैंने 4 साल दे दिए थे. मेरा 4th ईयर आया कॉलेज का एंड माई फादर वॉज लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वहाँ पे तू जा. मेरे को नहीं जाना था बट क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड की एजेंसी है मुझे वहाँ भी इसलिए भेज रहे थे कि मेरी आंखों के नीचे रहेगी. इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट था मेरे पे. तो वेकअप सेट वाली सिचुएशन हुई मेरे साथ यहाँ पे. आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी फिल्मी स्टोरी इफ यू थिंक अबाउट इट. 2 हफ्ता मेरे को गुड़गांव में मुझे याद है मैं गई अपने फादर की एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, उनके फ्रेंड की. आई किल्ड इट. द फर्स्ट वीक आई किल्ड इट. बट डिड आई वांट टू इन्वेस्ट माई एनर्जी इन दैट? नो. वाज आई बोर्न टू डू दैट? नो. व्हाट वाज आई बोर्न फॉर? एंटरटेनमेंट. वो करना था. सेकेंड वीक आई रिमेंबर मेरे साथ प्रॉपर रणवीर कपूर वाला सीन हुआ था यार. मैं डेस्क पे बैठी हुई हूँ एंड आई वर्किंग. मैं राइट में देखती हूँ एक गोलू पोलू सा लड़का ऐसे चश्मा पहन के खाना खा रहा है और ऐसे ऐसे काम कर रहा है. राइट में बंदी अपना काम कर रही है. I'm like गॉड सो जाओ. That's what I was doing on the second week. And then एकदम से मैं YouTube खोलती हूँ and then I'm entertaining myself. YouTube TVF की वीडियोस देख के I'm like I want to work with these people. And then I messaged Arunab that listen, I want to work with you people so badly. He was like अरे हम तो दिल्ली में ऑफिस खोल रहे हैं, जा तू कल ऑफिस में जा. I was like okay, दिल्ली में आ गए हैं लोग. You know what I'm saying? You know like how TV was in Delhi. मतलब मुझे मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, मुझे घर में कलेश नहीं करने पड़ेंगे. मेरे लिए चीज़ें इतनी ईजी हो गई. मैं छुप छाप के बिना बताए घर में गई. TVF ऑफिस हॉस्कास्ट में खुला ऑफिस गई. एक बंदा था वहाँ पे जो अभी चैनल हेड है टाइमलाइनर्स का, आकांश कौर. ही वाज सिटिंग देयर. ही वाज द ओनली पर्सन इन द ऑफिस. आई वेंट देयर.
He talked to me. I told him, la 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 la, Shreya Mehta, Pearl Academy of Fashion. And he gave me the NDA. I signed it, and I was the first person to join TVF Delhi when it started. So yeah, 4 years back, I was the first person to join this office, and I told my family. They were very upset कि ये क्या है, नहीं कर सकती हमारी घर की लड़कियाँ काम and all that. I was like, listen, I'm just gonna handle social media, and this is just an internship, just for like 4 months. Let me just do this. उसके बाद मैं छोड़ दूंगी. 4 महीने हो गए, हमने एक वीडियो नहीं निकाली थी. हमने कुछ नहीं करा था. 1 साल निकल गया. आफ्टर माई कॉलेज मैंने ज्वाइन ही कर लिया. बट इट वॉज अ वेरी टफ जर्नी फॉर मी टू ज्वाइन TVF also, because my family was like, you're not gonna work here ever. Just do your internship and then you're not working here. Because my father, he was scared. ये लड़की एक्टिंग करेगी कहीं ना कहीं जाके, यहाँ पर आ गई है एक्टिंग कैमरे के आगे आ जाएगी. तो he was so anti that. My father was so anti Bombay, so anti Bollywood and everything. But then I lied for good 1.5 years. I lied to my family that I'm not acting, I'm just handling the social media. Cut to आफ्टर सम टाइम मैनर्स का बात शुरू हुआ, चलो एक चैनल खोलते हैं दिल्ली से. तो फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द नेम ऑफ द चैनल, एवरीथिंग, आई वाज देयर. And you know, the channel started and we started making videos and stuff. अभी 10 वीडियोज़ हमने डाल दिए ऑनलाइन. मैं एक्टिंग करते हुए, तो ऑफकोर्स हमारा बजट नहीं होता था शुरू में, तो हम सारे ऑफिस के लोग एक्टिंग करते थे. तो राइटर भी एक्ट कर रहा है, डायरेक्टर भी एक्ट कर रहा है, AD भी एक्ट कर रहा है, ऐसा वाला सीन था. तो मैं भी एक्ट कर रही थी. अब 10 वीडियोस हो गई, वायरल नहीं गई क्योंकि नई नया चैनल था. मैं भी डरती रहती थी, शिट, बस like I'm happy that I'm acting, but then I'm scared. Oh my god, I hope my father doesn't see it. It's online. And तो पता नहीं, खुश भी नहीं हो पा रही थी मैं अपनी खुशी में. And so then I started doing vox pop videos. I remember I used to go on roads and I used to ask people questions. So my father liked that कि हाँ थोड़ा journalist वाला vibe है. तो मैंने बोला हाँ ठीक है कर ले. One day I remember, so I don't know if you people remember, but we did this video, karaoke video, types of singers in a bar. Ma Shera wali video, I don't know if you guys remember. So that was our first viral video of Timeliners. Like 9 million views back then on Facebook. It was like that. अब ये वीडियो हो गई WhatsApp पे वायरल. You remember? It got viral on WhatsApp. And मेरे को जम्मू से मैसेज आ रहे हैं, मेरे को गोवा से आ रहे हैं, पुणे से आ रहे हैं, श्रेया वी सॉ योर वीडियो. So it was the first time I was getting the attention from people that yeah, we saw your work, we saw you online. And I was like, ये पापा को ना चला जाए बस WhatsApp, you know. मैं खुश नहीं हो पा रही थी. And then I remember I was in CP shooting a vox pop video and my father calls me. ये क्या है मेरे फ़ोन में? व्हाट्सएप मेरे को भेजा है मेरे फ्रेंड ने, और उनके फ्रेंड ने उनको भेजा खुशी से कि ओ माय गॉड वी सॉ योर डॉटर, गुड वर्क, ग्रेट जॉब. बट ही टुक इट इन अ नेगेटिव वे. ही वाज लाइक, यू फेस द कैमरा, व्हाट इज दिस, इसको हटा अभी क्या अभी व्हाट्सएप से. आई वाज लाइक हैं मैं कैसे हटाऊँ, आई एम सॉरी ये नहीं हट सकती, हम पापा एंड सारे ऑफिस के लोग हैं, इसको हटा, तू कैमरे के आगे एक्टिंग कर. स्टार्ट येलिंग एंड आई डोंट नो गाइस, इतनी डरी रहती थी ना मैं इतने सालों से. But I had to stand for myself. My inner voice was saying, Shreya, no, you can't take this anymore because this is wrong. You know, you cannot take this attitude anymore. You have to do what you're born for. So my second thing which I want to tell everyone is that stop ignoring your inner voice. If your inner voice says go for it, just go for it. Do not give a damn कि क्या रुकावटें आने वाली है. बट अगर ये बोल रहा है करो तो करो. मेरी ज़बान खुल गई और मैंने बोला सॉरी, मैं एक्टिंग करूँगी, मैं शूट कर रही हूँ अभी, बाय. It was important to do that. And yeah, थोड़ी मैं fearless हुई. And अब घर में लोग आ रहे हैं, अरे आपकी बेटी का काम देखा हमने, बड़ा अच्छा लगा, अरे बहुत पसंद आ रहा है हम आपकी बेटी का काम, अरे शी इज़ वेरी नाइस, अरे हमारी तो सुपरस्टार है ये. अब मैं ऐसे बैठी हूँ हाँ जी, ड्राइंग रूम में हम लोग होते हैं. इट्स एन ऑकवर्ड सिचुएशन बिकॉज ऑल द मेन ऑफ माई फैमिली सिटिंग देयर एंड आई कैन नॉट इवन टेक द कॉम्प्लीमेंट्स. सो मैं कुछ भी अपने अप्रिसिएशन में एंजॉय भी नहीं कर पा रही थी बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ डर आई हैड अबाउट माई फैमिली इन माई हार्ट. एंड वायरल वीडियोज़ लाइक इंडिया पे टॉप ट्रेंड कर रही है, नंबर 1 पे हमारी वीडियोज़ एंड स्टफ.
मैंने नहीं पीछे मुड़ा, बस मैंने अपने फादर को एक प्रॉमिस करा कि हाँ चलो, प्रॉमिस नहीं करा, बस उन्होंने मुझे बोला कि तू बॉम्बे नहीं जाएगी, कुछ भी कर। अब ये हो गया, पहले था TVF में काम नहीं करेगी, अब ये था कि तू अब बॉम्बे नहीं जाएगी। अब ठीक है नहीं जाऊँगी, बट जाना तो था। And nothing, guys. For 3 years, I did not do any night shoots, nothing. I did nothing for the sake of him. I sacrificed so much. I regretted so much. But I sacrificed a lot for my family. But then I realized one thing, that it's not worth it. If this is not happy, if your heart is not happy, there's no point of doing anything. You know what I mean? Mistakes are so much better than regrets. It's so much better. Make the mistakes. It's so much better than regretting. मेरे को बस अब क्या हो रहा था कि अब मैं सफोकेट हो रही थी कि 3 साल, अब मैं सफोकेट हो रही थी कि 3 साल हो गए, I'm just doing YouTube videos. I want to grow more. I'm wasting my time. And then I remember 10th Feb last year, I was working for a Time Runners video, and I knew that ये वीडियो वायरल जाने वाली है, and I'm doing something जो लाखों लोग करना चाहते हैं. I'm finally there. But then of course I knew the potential in me. It was so much. I wanted to do movies and stuff. And I remember I was shooting 10th Feb ko, and then I got a call that, hi, we are casting for Namaste England. I was like, you know, like I got a call for a film, that to Namaste London ka sequel. I was like, and we are looking for this character Mithi, and then I think like we just want to take your audition. I was like, yeah, cool. And then I just sent them my WhatsApp audition. Next day I got a call, Vipul Amritlal Shah wants to meet you. He's the director of Namaste London. Okay, I sent another audition. I sent him 2 auditions, 2 days, and I got the film. 300 girls in Bombay didn't get it. I got it in Delhi में बैठे बैठे. Now मैं खुश हो रही हूँ that I got a film, Bollywood A-list film. But then I was scared that अब मैं पापा को क्या बोलूँगी. Oh, also I didn't tell you, but बहुत सारा ड्रामा मैंने मिस भी करा है. मैं बीच बीच में छुप के बिना बताए बॉम्बे भी गई हूँ, फ्लाई करके किसी को बिना बताए, because had to do it. So yeah, I did a lot of those things. But then now it was time to इधर या उधर. My father asked me a simple question in anger. ठीक है, तू गई, अगर तूने गेट के बाहर पैर रखा तो उस घर में वापस मत आइयो. And I was like, okay, नहीं आती फिर. I left the luxuries, I left everything, and चली गई बॉम्बे, मिल गई फिल्म, and yeah, and I did what my heart wanted to do. And कहता ना दिल धड़कने दो की एक लाइन है, मैं वही बोल रही हूँ, फिल्मी कुड़ी की वजह से मैंने अपना नाम रखा, बिकॉज माई लाइफ इज अ फिल्म, एंड बिकॉज आई टेक गुड पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स. लाइन है कि दिल जो कह रहा है ना वो करो, दिमाग रास्ता निकाल लेगा. Everyone's gonna be having a sorted life if you follow this one line. Follow this, ये कर देगा यार कुछ, ये किस लिए है. एंड मैंने छोड़ दिया सब कुछ यार, एंड मैं चली गई बॉम्बे में, वापस आई, हुआ पूरा शूट वूट, माई whatever. I took the craziest step, I took the toughest step of my life, but trust me, it was worth it. You don't get in life what you want, you get what you fight for. Abhi, my first film failed. Am I upset about it? I should be like crying, because मेरा 10 साल सपना था बॉलीवुड में आने का, but it's okay. I know something better is gonna happen because I'm working hard, and I'm gonna work hard till my last breath. And yeah, so that's the filmy quiddy, and that's what I want to say. उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया. बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता. मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है. मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ. फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई. तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया. बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता. मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी.
तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।